So good evening, and may I request Abhishek, please share the link with Dr. Manoj also uh, of presentation. Yes. Okay, thank you. So it's a great day, and I have lot to share, details, lot to share with you, lot to inform. One is that this is the second last session that we are having with you. 29th of July, we close this course, and we've had a wonderful, wonderful, most promising, encouraging, fruitful journey with you. And I hope that you also share the same views that I have. And I'm sure the counselors are in touch with you at all times. And counselors, I hope the team leads are taking care of you. Reed taking care as taking charge. And you guys are delivering. So we will make sure that in this last 1 week, we leave no stone unturned. Okay. Each one of us, for ourselves, for our own credibility, for our own image, for our own standards, for our own satisfaction. Okay. And I'm requesting all the DTOs. I'm addressing all the counselors, and I'm addressing all the team leads as I say this. So 29th of July is the closing. Please reach out to your STOs. Many of the STOs have already confirmed to us that they would be joining. And all the STOs who join, will be requesting them, that you receive your certificate through their hands. It will be a great opportunity. The CTD staff will be there. The DDG is going to be there. So you will get your certificates there. Everything will get recorded. And we will feel most happy to acknowledge your hard work. DTOs, there is no doubt in our minds that it is absolutely your hard work only. And you and only you truly deserve to wear the crown of all the outcomes which will take shape at the end of this PDSA. Your PDSA links have been shared with CTD and with WHO. You may expect some people to ask questions or to see and validate the data. Please be frank. Please be transparent. Please be forthright. You have all done a marvelous, wonderful job. We have, yes, Dr. Manoj, I can make out sometimes you want to see. So I'll add to this, Commodore Raman, you've said they've been shared with CTD, they've been shared with so many other people. So they've also been shared with API. API is the American Association of Physicians of Indian Origin. API is the organization of physicians in America, over 100,000, 1 lakh doctors. And I had a very nice conversation with the secretary yesterday. I've had conversation with the former president, the president of API, and they are well aware and very supportive of all the work. And your presentations are being shared with them as well. So if there is somebody from, say, Gwalior, or someone from a district in Agra, those individuals, those doctors who are in America, who have come, their hometown and is in that district, they are very eager to hear what you from that district are doing. So we will be matching individuals and sharing your presentation, because they know what the API doctors know what PDSA is, because in their hospitals, they are doing this in America. And when they see someone doing this in India, in their hometown, they are absolutely delighted. So if you do get a message from them, don't be surprised. But what you will be doing is reaffirming to the NRI doctors that you and your team and we all are making a difference in their hometown in eliminating TB. And I think there is no better gift than that for them in what their desire is for their homeland. So thank you so much. And please be aware that the PDSA presentations that you're doing are being shared widely, and it is making an impact. People call me and tell me when they hear about the PDSAs and seeing how much effort you have put in, they're stunned. The word that they say is, I'm absolutely stunned
by what I'm seeing and hearing. So thank you so much. Thank you, Dr. Manoj. And absolutely, DTOs, Dr. Manoj, I was talking to Mr. Ashish Bali yesterday. I have shared with him the links of, his home state and district. He had promised him when he came for the session. And I had told him that I'll keep you updated. So yesterday I have done so. Remember, gentlemen, ladies, he was the guy who said $1 billion is what he's going to advocate. And he's already at the mark right now to give to the TB program to USAID. And other things, wonderful organizations who are looking at India as well. So great. And also, I would like to tell you that what we have undergone right now in this journey is just the tip of the iceberg. You have just scratched the surface because our objective was to make sure that we contribute to the increase in the TB notification that we have missed in the last 2 years of COVID. So that was the focus, and accordingly, we shared the entire knowledge and the approach with you for the objective of the notification. I must tell you that you have still missed the wonderful tool that PDSA is, and this tool, once we will properly share with you, in appropriate time, you can utilize it in your personal life, in your professional life. And we would be now visiting the southern states of the country to do this course in a much more expanded form, where we will have in-person meetings also. I would be showcasing with you on the 29th of July how much fun we had with the DTOs of UP, Uttarakhand and Chhattisgarh in an in-person meeting. So DTOs of Andhra Pradesh, Andaman Nicobar, Karnataka, Kerala, Lakshadweep, Puducherry, Tamil Nadu and Telangana. We will be coming to you, approaching you once again. And now we will be looking at a 6 months duration course, very at ease. And therein, we will look at actually bringing the behavioral change in all of us. Dr. Manoj, you would like to add something Sure. here? Absolutely. So DTOs, what Commodore Raman is talking about is that CETI has been involved in 2 major projects. The first has been with Union and iDefeat, which is a USAID funded project, which is a 6-month length course. And that's what he's talking about, where we take select states every 6 months. And now the turn is for the southern states. And we're opening that up in the next few weeks. And we would love to have the southern DTOs join in on that program. The second is the one that is funded by Emory and others. And that is the program that we are in, which is a shorter 2-month. There is a lot of new content and great content in both the courses. And we encourage you to participate and learn and then progress. There's so much we can do together. So absolutely, for the southern states and the southern DTOs, we look forward to you joining us on the iDefeat part. So thank you. And we begin with the presentations for today. I understand DTO Kishanganj is not yet here, although he has been advocating that he be given the chance to present first. So we take this opportunity to first invite Dr. Shyam Nandan Prasad, DTO Vaishali, and if he is not there, I would like to call upon Mr. Rajiv Kumar, the DPS of Vaishali, to present his PDSA. Bhumika, kindly share the screen. Hello, Mr. Rajiv. Hello. Okay, was he confirmed he's there? Otherwise, we go to the next one. हेलो Yes, sir, he's Yes. here. हेलो Yes, हेलो yes. Yes, yes, आप. हाँ मैं मिस्टर राजीव बोल रहा हूँ
अपने सीडीओ के बिहाफ पे अपने वैशाली जिले को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अभी। तो मेरा नाम राजीव कुमार है और मैं वैशाली जिले में सीनियर डीपीएस के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। यह 11 करोड़ जनसंख्या वाले बिहार राज्य के उत्तर भाग में मेरा वैशाली डिस्ट्रिक्ट जो है पड़ता है और करीब करीब प्रत्येक वर्ष 5524 केस जो है नए टीबी केसेस का जो है नोटिफाइड किया जाता है यहाँ से। हमारे पीडीएसए चक्र का शीर्षक है नोटिफिकेशन में टीबी नोटिफिकेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, या वो पब्लिक सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, क्योंकि जब तक हम लोग दोनों सेक्टर पे फोकस नहीं करेंगे तब तक कि जो इन टीबी बाई 2025 का जो टारगेट है भारत सरकार के द्वारा वो करना थोड़ा सा मुश्किल है। और अभी जो इस काम को करने में हमें जो तकलीफ हो रही है या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो हमने पाया क्या कि टीबी का जो स्क्रीनिंग है वो बहुत ही कम संख्या में हम लोग कर पा रहे हैं, जिससे नोटिफिकेशन जो है नहीं बढ़ पा रही है। इस काम को करने के लिए हमने जो है एक टीम का गठन किया है और टीम के गठन में जो है हमारे जो सीडीओ हैं डॉक्टर श्याम नंदन प्रसाद, मैं स्वयं हूँ। उसके बाद एक टीबी असिस्टेंट है शैलेंद्र प्रसाद, डेटा एंट्री ऑपरेटर सब श्वेता कुमारी, और हमारे जो एनजीओ पार्टनर है जैसे डॉक्टर फॉर यू या रिच, जिन्होंने सेकेंड लाइन पे काम कर रखा है रिच ऑर्गेनाइजेशन, और फर्स्ट लाइन पे जो है डॉक्टर फॉर यू का बड़ा ही अच्छा ही कोलैबोरेशन रहा है। सर आप दूसरे जो डिवाइस से ऑन कर रहे हैं उसको ऑफ कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए उसको। जी हाँ, 1 मिनट मैं म्यूट कर देता हूँ उसको। थैंक यू। और जैसा कि हमने पहले भी और अभी शुरू करने से पहले बोला था कि हमारे जो टीवी नोटिफिकेशन का जो रेशियो है वो कम है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है स्क्रीनिंग का जो मेथड है हमारे लोग के यहाँ वो कम स्क्रीनिंग हो पा रहा है। तो हमारा जो एम स्टेटमेंट है वो एम स्टेटमेंट जो है इन वैशाली बिहार, इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट बिहार वी विल इंक्रीज टोटल नोटिफिकेशन बाय 4% within 2 months using sensitization of एमओज, आसाज, आरएमपीज एंड सोशल वर्कर। ऐसे माने जितने भी हमारे जो है हम लोग के साथ मिल के काम करने वाले लोगों को जो है सेंसिटाइज करेंगे और फिर हम अपने जो लक्ष्य को पाने में सफल रहेंगे। इस काम को करने के लिए हमने एक प्रोसेस मेजर अपनाया है और उस प्रोसेस मेजर में हमने 3 बिंदुओं को लिया है, जैसे नंबर ऑफ पेशेंट क्लिनिकली डायग्नोज्ड, वैसे पेशेंट जो क्लिनिकली डायग्नोज होते हैं एक्सरे के माध्यम से या कोई अदर टूल्स है उसके माध्यम से। दूसरा है टोटल नंबर ऑफ स्पूटम सैंपल कलेक्टेड, जितना जो है स्पूटम सैंपल का जो कलेक्शन हम लोग करते हैं उसमें कितने पॉजिटिव पाए गए। तीसरा है नंबर ऑफ एक्सरे सजेस्टिव फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे देखने वाली बात है कि प्राइवेट सेक्टर से जो हमारे पास जो पेशेंट की संख्या आ रही है उसमें जैसा कि आप निक्षय पर भी देख पा रहे होंगे कि 55% का शेयर उनका है। 55% का शेयर जो है क्लिनिकली डायग्नोज्ड आता है और उन लोग के यहाँ हमको ऐसा लगता है कि 85% जो है एक्सरे सजेस्टिव होता है, जो कि एक अच्छा स्क्रीनिंग का मेथड भी है और उससे हम लोग जो है टीवी नोटिफिकेशन को और से ज्यादा बढ़ाएंगे। हमारे पास जो डेटा है वो आप देख रहे होंगे और डेटा हमने जो है एक टारगेट प्रोसेस मेजर के बाद जो है हमने जो है एक रन चार्ट किया था जिसमें जो डेटा फिल किया है वो आपका जो है अप्रैल मार्च 15 से जो है अप्रैल 30 तक जो है हमने किया है और उसके बाद अभी जो है इंटरवेंशन का काम भी हमने किया जो डेटा आपके सामने दिख रहा है। ऐसा लगता है कि जो हमने काम किया उसमें और भी काम करने की आवश्यकता है। दूसरा कि हमने अभी ठाना है कि जितने भी हमारे जो ब्लॉक है, हमारे यहाँ 16 ब्लॉक है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, 16 ब्लॉक को जो है हम बारी बारी से एक्टिव केस फाइंडिंग के द्वारा एक ब्लॉक के हर एक पंचायत में जाएंगे और 2 टीम का गठन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी एक हमारा जो है मुरौवतपुर एक पंचायत है,
जिसमें हमने जो है टीबी एलिमिनेशन के लिए जो एक्टिव केस फाइंडिंग किया है, और उस सहदेई बुजुर्ग ब्लॉक में पड़ता है। तो वहां पे जो है 14 वार्ड है उस पंचायत में। 14 वार्ड के लिए हमने 14 टीम का गठन किया और हमने एक्टिव केस फाइंडिंग किया, जिसमें क्लिनिकली और स्पूटम माइक्रोस्कोपी के द्वारा 8 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए। तो इसी तरह का काम जो है हम पूरे ब्लॉक में करेंगे और धीरे धीरे जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें जो है हम लोग उम्मीद है कि काम करेंगे और जो ये लक्ष्य जो है हमारा 2025 का वो पूरा कर पाएंगे। एक बात और हम कहना चाहेंगे कि जो इंटरवेंशन का काम जो हमने शुरू किया है, उसमें जो PDSA का टूल्स जो है काफी सपोर्टिंग है, और CTI का टीम जो है वो भी काफी मददगार साबित हो सकता है। अभी तक जो उन्होंने काम किया वो भी जो है काबिले तारीफ है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे हम लोग मिलकर बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। बहुत अच्छा मिस्टर राजीव कुमार, आपने जो बताया है, एक्चुअली जो आपने बताया उसके अंदर से दो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं, लर्निंग्स हैं। एक तो आपने बताया कि किस तरह से आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और मुझे इस स्क्रीनिंग को थोड़ा सा डिवाइड करना है एक कॉन्वर्सेशन में, just so that all of our DTOs and all of our folks understand. अपन को अगर नोटिफिकेशन इंक्रीज करना है तो 3 लेवल्स के ऊपर अपन को काम करना है। एक जो आपने ऑलरेडी कर रहे हैं वो पैसिव केस फाइंडिंग। तो पैसिव केस फाइंडिंग, अगर पेशेंट अपने पास आए तो आपने बोला कि वो तो हो रहा है, वो जितना होएगा अपन अपने हाथ में नहीं है। फिर आपने ये बोला कि नहीं, मुझे और करना है, तो आपने एक्टिव केस फाइंडिंग, सर्वेलेंस करना शुरू करा, एक्टिव केस फाइंडिंग। फिर उससे एक और लेवल है, इट्स कॉल्ड इंटेंसिव केस फाइंडिंग। इंटेंसिव केस फाइंडिंग ये होता है, अगर हॉस्पिटल में पेशेंट्स आए तो व्हाट डेटा टेल्स अस, डेटा ने ये बताया कि बहुत सारे हॉस्पिटल के पेशेंट्स इवन अगर अपेंडिक्स के लिए आए या कोई ब्रोकन हिप के लिए आए, उनको भी टीबी की बीमारी हो सकती है। अगर अपन उनको स्क्रीनिंग करें तो अपन टीबी के केसेस जल्दी पिकअप कर लेंगे। सो ये 3 चीजें अपन करेंगे, पैसिव केस फाइंडिंग, एक्टिव केस फाइंडिंग एंड इंटेंसिव केस फाइंडिंग, देन यू विल इंक्रीज नोटिफिकेशन। अब आपने दूसरी ये भी चीज देखी है और आपने बातचीत करी है कि अपन एक्सरे करें। एक्चुअली मेरी WHO से और सीनियर लीडरशिप से यही बातें हो रही थी CTD से 2 वीक हफ्ते जब मैं दिल्ली में था, कि किस तरह से वी कैन इंक्रीज नोटिफिकेशन यूजिंग इनोवेशन। तो एक्सरे तो इनोवेशन नहीं है, बहुत सालों से अपने पास एक्सरे ऑलरेडी है, बट व्हाट इज एन इनोवेशन इज अ हैंड हेल्ड। आपको मालूम है कि अपन सबके पास टेलीफोन, तो सालों 50 साल से टेलीफोन है, पर जब मोबाइल फोन आ जाता है, जब मोबाइल फोन होता है तो वो इनोवेशन हो जाता है। इसी तरह से बातचीत चल रही है कि अपन इनोवेशन करके हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन यूज करें स्क्रीनिंग के लिए, और अब जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप वो यूज कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। सर, हमारे यहाँ जो डॉक्टर फॉर यू एक है ऑर्गेनाइजेशन, जो NGO है, तो उन्होंने एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन जो है पीठ पे लादने वाली जो है, पीठ बैग पे लगा रहेगा और हम लोग जो उसको आसानी से यूज भी कर सकते हैं। ऐसा जो है हम लोग योजना बनाया है और इन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्धता दोहराई है, लेकिन अभी तक हम लोग के पास उपलब्ध नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे इस काम को करेंगे। परफेक्ट। तो देखिए, जो बात मैं कर रहा था वो ऑलरेडी आपके पास आने लग गई है, और अब आप सेंसिटाइज हो गए, अगर आप वो देखेंगे तो आप बोलेंगे कि डॉक्टर मनोज ने बताया था कि ये चीज ऑलरेडी आ रही है, एंड आप जल्दी से अडैप्ट कर लेंगे। एक्सेलेंट वर्क, बहुत अच्छा काम है। एंड दिस इज फॉर ऑल द DTOs. Just these conversations help sensitize you to, then when you see that technology or that idea, then you will adopt that very quickly. So Commodore Raman, over to you. I think yes, Dr. Atri, yeah, Dr. Ajay Kumar, yes please. Doctor,
No, I can't hear you. You may have to unmute. Edwin, could you help Dr. Ajay Kumar speak? सर आप अनम्यूट कर लीजिए. Okay. गुड इवनिंग सर. Yes. हम लोगों ने जो प्लान बनाया, जैसे हैंड हेल्ड एक्सरे की बात कर रहे हैं, वी हैव आस्क्ड 2 हैंड हेल्ड एक्सरे machines to screen our industrial workers and also our migratory population. Rather, we can say that our guest workers, we are on the way to it, and more probably within 1 or 2 months we will get to X-ray machines. Excellent. And we will then screen all this population. Very nice. Excellent. It will help very much. Dr. Ajay, जैसे आप कर रहे हैं, and what I would say, if all the other DTOs began to say and request this of their STOs and CTD and others, and their collector also, that will make a difference. सर, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा. Actually, जो समस्या है हैंड हेल्ड एक्सरेज को लेने में, that is the cost. Yes. It is very costly. It is round about 38 lakh rupees. Yes. No, agreed. में बहुत सारे barriers हैं, but you know, CB-net machine का भी वो challenge था, and I'll tell you, but these are things that we will overcome, and there are lots of NGOs and international agencies which are supporting such ideas. It is the people on the ground which we have to demand these things, request these things, and that will work. But you're doing all the right things that's necessary, that this will help you find and do that surveillance and screening and go from passive case finding, active case finding, as well as intensive case finding. बहुत अच्छा. Thank you so much. Thank you, Dr. Manoj. Thank you, Mr. Rajiv. Thank you, Dr. Ajay. And we have lots of ground to cover. I request Dr. Velasamy, DTO Tirunelveli, to please present his PDSA. And Bhumika, you can start sharing your screen. And I know that your target was 2%. They have achieved the target already in June. But I would like to hear it from the DTO himself. Yes, Dr. Sami. Good evening to everyone. I am Dr. Velasamy, DTO from Tirunelveli district, Tamil Nadu state. Our district has 34 lakh population. 3,000 to 4,000 TB patients reported in every year. The title of our PDSA cycle is Improving Private Notification in Tirunelveli district. In our country, in our journey to be TB free, one problem was faced the social stigma. There is very less number of notifications from private practitioners. In this situation, we have sensitized the private practitioners to give health education for their patients. TB is a airborne disease and it is a curable disease. If we take regularly for 6 months, then it will be completely cured. So we have also involved TB champion. So we developed a team. In our team, TTO, PPM, STS, and HB. So, Bhumika, I will request you to share the run chart. And Dr. Velasamy, I want to specially hear from you. How did you use the TB champions for the IEC activities? That is most interesting to know. So we will tell, the TB champion will tell their story, sir, success story. Okay. So you took the success story to the patients. Very nice. Yeah. Very nice. After having after finishing 6 months treatment, then it will be completely cured. No need to worry about disease. So we have sensitized the TB champion only, sir. Okay. So please tell us about your run chart. This is the process map, sir. We have
two meeting conducted with the private practitioner and pharmacists in June, sir. And July, we have a lot of work, so we have conducted only one meeting only. Okay, Yes, okay. Number of IEC activities conducted by TP champion on June 4. So this is what has contributed to your outcome measures more. Okay. And I can see that your outcome measures you had planned, I think 112 you have reached, already surpassed what you had planned. Bhumika, Yes, what was the target? 2% achievement, sir. 100% notifications. Okay. We have started baseline in June only, sir. Okay. Very nice. Very nice. So the target was to achieve 2%, and then again yesterday through Niksha data I verified, so they had already 105 notification, which they have achieved 112 till June end. Okay. So very nice, Dr. Velasamy. I request that you keep practicing this PDSA and keep improving your own targets. Thank you so much for your presentation. So very nice, Dr. Velasamy. I'll say this, that what you did here was you said, look, there's lots of things I can work on, but what I need to work on is the TB champion. And you used, because the stigma was something that was a major challenge to you and your team. And we can see that when you begin to focus in on a particular topic, you are able to observe it, and then you are able to work and improve it, right? The old saying is, you can't improve what you don't measure, and you can't measure anything unless you observe. So those things are what you are doing, and it will by itself begin to improve, because as a senior level person, you begin to pay attention to this, and your team pays attention and prioritize. So thank you so much for addressing a very difficult problem of TB stigma and using a well-known evidence-based technique. Now imagine if everyone in the country was also doing the TB champion work at the level that you're beginning to do. I think that would be a great asset. So thank you for sharing your experience. Thank you so much. And Dr. Manoj, you mentioned Agra today in your opening remarks. So we have now the PDSA presentation from District Agra. मैं invite करता हूँ Mr. Shashikant Porwal. He is the DPTC Agra, and आप अपना PDSA present करें. Ekta, please share the screen. Ekta? Hello, Mr. Shashikant ji. Hello. शशिकांत जी आप हैं आगरा? हाँ आइए. So we can begin. It was on a low private notification. Yes. Yeah, we can. We can't hear you. So, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. नहीं, आवाज म्यूट पे है. डिस्ट्रिक्ट आगरा ने अपना पीडीएसए प्लान किया था. इनकी भी प्रॉब्लम लो प्राइवेट नोटिफिकेशन की थी, और इन्होंने प्लान किया था कि वो 5% बढ़ाएंगे. 1149 से 1204 की संख्या तक जाएंगे 2 महीने में, जून और जुलाई के अंदर. और इन्होंने प्लान किया कि हम प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को सेंसिटाइज करेंगे, और निक्षय आईडी से हम प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को एंट्री करवाएंगे और सेंसिटाइज करवाएंगे. तो ये उनकी एम स्टेटमेंट बनी कि इन डिस्ट्रिक्ट आगरा वी विल इंक्रीज प्राइवेट नोटिफिकेशन बाय 5%. 1149 से 1204 तक पहुंचेंगे विद इन 2 months. आप कोशिश करते रहे शशिकांत जी, आपकी आवाज ट्राई करें. जैसे आप बोलना शुरू करेंगे मैं चुप हो जाऊंगा. सो
इनका हम रन चार्ट अगर देखें तो इनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी रही है। अगर आप इनके प्रोसेस मेजर्स देखेंगे तो इन्होंने जो निक्षय की जो एंट्रीज पे काम करना शुरू किया, बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही इनकी मई और जून के अंतराल में। बट उससे ज्यादा जो इनकी जो उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स पे काम करना शुरू किया, उससे इनको काफी ज्यादा फायदा हुआ है। आप अगर देखेंगे कि जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को उन्होंने सेंसिटाइज किया, उसकी आप तादाद अगर देखें तो आप देखेंगे कि जून के अंदर 408 प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को विजिट करी गई। और उसके बाद जब डाटा आना शुरू हुआ, उसका अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो उनसे इनको फायदा होना शुरू हुआ है। और आज की तारीख में अगर हम आउटकम देखें तो इनका जो टारगेट था, और स्क्रॉल डाउन करें सृष्टि, इनका जो टारगेट है वो है 1204। आंकड़े आना शुरू हो गए हैं। डेफिनेटली मेहनत इनको अभी और लगेगी आगरा में। अभी आपकी आवाज आ पा रही शशिकांत जी? आप अनम्यूट करके देखें एक बारी। ओके, नहीं हम सुन पा रहे हैं आपको, सो कोई समस्या नहीं। तो डेफिनेटली शशिकांत जी, आपकी प्रोग्रेस तो नजर आ रही है। और ये जो आपने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया था एक डीटीओ ने, फॉर्मिंग अ प्रॉपर प्लान टू ऑफिशियलाइज द थिंग्स, ये आपके डीटीओ ने एक बहुत अच्छा लेटर उन्होंने चलाया कि इस किस तरह से हम एक पीडीएसए कर रहे हैं, किस तरीके से हमें सबकी सपोर्ट की जरूरत है, और किस तरह से हम 4 फेजेस में इस काम को करेंगे। बहुत अच्छा उन्होंने बताया था कि 1 मई से 10 मई तक हम क्या करेंगे। 11 मई से उन्होंने उसको एक ऑफिशियल ढांचा पहनाया। तो दिस इज अ गुड थिंग टू फॉलो एंड सी DTOs all across. Thank you, Shashikant. Thank you so much. Now it is time for me to invite DTO Kolasib, Dr. Laltha Mona. डॉक्टर लालथा मोना, अगर मैंने आपका नाम गलत प्रोनाउंस किया है तो मुझे माफ कीजिएगा और सही प्रोनाउंसिएशन बता दें। और मैं आपको इनवाइट करता हूं और उसके साथ बेबीना को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्क्रीन शेयर करें। Good afternoon, everyone. Good afternoon, Dr. Saab. Yeah, my name is Dr. R.K. Laltha Mona. Okay. I'm from Kolasib district. I'm DTO of this Kolasib district, which is in the northernmost part of Mizoram, bordering Assam. And in this PDSA, our aim is to increase our problem is low notification of TB cases in the district, which is mainly attributed to low referrals from the medical officers. And we try to change this one in our district, Kolasib district, Mizoram. And we try to change it by increasing notification by 5%. And during this period is 13 June to 28 July. How to make these changes is by TB4S training in medical officers sensitization and WhatsApp reminders. After sensitizing, we need to repeatedly remind them to send samples for testing. So our end statement is that one. And our team will measure the improvement by process measures will be number of general medical officers and specialty MOs sensitized fortnightly, and number of WhatsApp reminders sent to medical officers, and number of referrals by the medical officers, which will ultimately increase the public notification. That will be our outcome measure. And to obtain this increase in notification and all the process, our team members are including me and our STS, our PPM coordinator, STLS, and our DPS from the district TB center. And we sensitize our medical officers, general medical officers, and the specialty medical officers within the district. And we repeatedly sent WhatsApp reminders to them
and which ultimately increase the patient's referral for TB testing. And this ultimately lead to increase in public notification. Thank you. Thank you, Dr. Saab. So I think initially you planned to increase by 5%. Am I right? Yes. That was how you started the journey. Yes. And how much have you increased now? I think it is well beyond 12% right now, I can see. Yeah, it's more than that. Great, great. Dr. Manoj? Very nice, very nice. So, Dr. Latamuna, I think what you are doing here is very strategically. आपने देखा कि very clearly that the problem is lying with our program, the TB program. In one stage, it is a vertical program. Matlab, everyone is TB problem comes to a TB DTO for management. And what you're doing is you're making it a horizontal program. Matlab, जो दूसरे doctors हैं who are not doing TB work every day, you are sensitizing them because you know the referral will come, and we can see the impact. You can see that as the boosting part of the phase, you are now increasing that number to go up higher and higher. So this is an important message for all of us that we must not think of the TB program and TEP program as only vertical, that only a certain group of people are going to be screening and finding the TB cases. It is the medical officers and others, the horizontal who have a greater reach, and you bring them in. And obviously, your data shows that once you do that, you can bring increased notifications. So very nice work. And congratulations on increasing beyond your target. Good work. Yeah, thank you. Dr. Manoj. Now I call upon Dr. Sanjay Joshi, DTO Dhar. Very good PDSA in progress. And if the efforts continue like this, we will have a very, very interesting outcome to see. So Dr. Joshi, I welcome you. You are my neighborhood also. I am in Mahu. Please present your PDSA. Good evening, sir. Dr. Sanjay Joshi from District Dhar. Dhar is a very tribal area, remote area of the Madhya Pradesh. और मेरा जो मेजर इश्यूज है यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन, लिटरेसी एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन सर मेरा एम स्टेटमेंट इसमें है इन धार डिस्ट्रिक्ट वी विल इंक्रीज टू टोटल नोटिफिकेशन बाय 0.5% विद इन 2 months using sensitization of medical officer, ASHA lab technician and pharmacist. In process measures, number of medical officers sensitized, number of ASHA sensitization, number of lab technician and number of pharmacist sensitization. In my team, myself, Dr. Sanjay Joshi, my STS, Mr. Neeraj Awasthi, DPC, Mr. Mukesh, and STS, Mr. Mahesh is my co-partners for this team. If you see the run chart, we will initially increase. मार्च में हम लोगों ने किया था 15 to 31 मार्च. नंबर ऑफ एमओ 30 की बेस किया हुआ है. देन ट्रेनिंग हमने मई मंथ में किया है 12 में का. सेकंड 15 to 30 मंथ में 16 डॉक्टर्स किए हैं. थर्ड में 18 किए हैं. और अभी नेक्स्ट 15 हमारा लास्ट 30 तक हो जाएगा सभी जी. इसी प्रकार से आशा में 380, 530 ग्रेजुअली 680, 702 करके कर लिया है. लास्ट 742 आशाज हैं जिनको इस मंथ के एंड तक हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे. नंबर ऑफ एलटीज 31 डीएमसीज है मेरे यहाँ. तो 12 एलटीज को मैंने फर्स्ट इनिशियली कर लिया था. देन 12 एलटीज को किया हुआ है. एक बैच हमारा अभी जो लास्ट हुआ है 12 एलटीज का हो गया है. एलटीज का ट्रेनिंग पूरा हो चुका है हम लोग. नंबर ऑफ फार्मासिस्ट थोड़ा सा मेजर इश्यूज है इसमें सर. हमने 23 को कर चुके हैं, 10 को अभी प्लान किया हुआ है. इसमें सर एक और बताना चाहूँगा, एसटीओ मैडम का हमारा इसमें इनोवेशन है. उन्होंने सारे जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं वो थ्रू फार्मासिस्ट का ही उन्होंने प्लान किया हुआ है. अब एवरी डीएमसी पीएचआई पर हमारे फार्मासिस्ट के द्वारा ही मेडिसिन दी जा रही है. टोटल नोटिफिकेशन में यदि हम बात करें सर
तो 234 इन मार्च, अप्रैल में 218 और उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज करते हुए हम लोगों ने 784 करना है। 2% इंक्रीज हम लोगों का हो गया है। 497 का रेशियो है जो हम मोस्ट प्रोबेबल कर लेंगे सर। 784 2% कर चुके हैं सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू डॉक्टर जोशी। एंड मैं देख रहा हूँ कि आप इसको अडेप्ट करना चाहते हैं। यस डॉक्टर मनोज। So excellent work, Dr. Joshi. And then Commodore Raman said that he's close to Dhar, and so am I. My grandfather was born in Dhar, so my ancestry goes back to Dhar very much. And my cousin, Dr. Ashok Jain, also lives in Dhar. He knows you well. And he is very supportive to our TV programs. Yes. I know he's talked to me about you and your work, so I'm very, very touched by the fact that I'm seeing you here. So good PDSA. A couple of things I want to point out that we need to be thinking about. So few things that even before, if you look at the interventions, even before the training, that you were able to do a level of sensitization. And what you have shown that, yes, you can do that. What does the PDSA do different than what was done 6 months ago? You also had that 30 numbers of individuals sensitized. What the PDSA does is that it stabilizes, it sustains that level of work. That is what is really important for all of us to understand. That what the PDSA through data is showing us is that we can sustain this. And so it doesn't end in 3 months or 6 months. It begins to be, as we talk on the last part, we adopt that practice, we ingrain it into our activity and make it a measure. So that is a difference between what you are doing now. It is that now you're ingraining it into your process. So great work, Dr. Joshi, and thank you so much for your work in Dhar. So during pandemic era, there is a very lot of turbulence in programs, but now gradually sustained and streamlined nowadays. Excellent work. Thank you, Dr. Joshi. Thank you very much. Thank you so much. And my request to you that, in MP, our voice should become more strong and strong. So all your friends and this thing, please do share with them the strength of PDSA and the benefit that you get from this. DTO Dahod, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? Okay, मैं उनको दोबारा इनवाइट करूंगा। अब मैं इनवाइट करता हूं, मेरे को डॉक्टर अरविंद कुमार राम बिल्कुल तैयार हैं अपनी PDSA शेयर करने के लिए। और मेरे ख्याल से शायद DTO किशनगंज ज्वाइन कर गए ना? Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So मैं एक के बाद एक डॉक्टर अरविंद कुमार की प्रेजेंटेशन के बाद DTO किशन को बुलाऊंगा, जिससे कि बिहार जो हमारा बहुत ही एक अभिन्न अंग है, उसकी चर्चा जो है बहुत ज्यादा फेवरेबल बातचीत में हिस्टोरिकली नहीं होती आई है। पर ये जो 2 PDSA हमारे सामने अब प्रेजेंट होने वाले हैं, ये एक बहुत ही अलग सामने तस्वीर हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे। सो डॉक्टर अरविंद, आप अपना PDSA प्रेजेंट करें प्लीज। हेलो, बिल्कुल, हम आपको सुन सकते हैं। यस यस, गुड इवनिंग सर, ऑल ऑफ यू। हेलो, we can hear you, Dr. Arvind. We can hear you very well. Please go ahead. Good evening, sir, all of you. I am Dr. Arvind Kumar, CDO Gopalganj, बिहार। थैंक यू सर, आप लोगों ने हमें कुछ बोलने का यहाँ मौका दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले मैं जिस नोटिफिकेशन के लिए इंट्रोड्यूस किया है वो पब्लिक सेक्टर से माझा टीयू के नोटिफिकेशन के लिए किया है। माझा टीयू का नोटिफिकेशन कम था, इसलिए माझा का मैं गोपालगंज के माझा का मैं ज्योग्राफी कुछ बता दूं कि बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार के पश्चिमी वेस्ट जोन में और नॉर्थ में एस्टेब्लिश्ड है, और गोपालगंज से 12 किलोमीटर ईस्ट माझा है सर।
इतना करीब होने के बावजूद भी वहाँ नोटिफिकेशन पुअर है। इसका रीजन है सर कि वहाँ का मैक्सिमम पॉपुलेशन कुल माझा के 20 पंचायत हैं और 111 गांव हैं, वहाँ विलेजेज हैं, लेकिन कुल मिलाकर 2 लाख पॉपुलेशन है वहाँ का, और 12 पंचायत जो है वो गोपालगंज से सटे हुए हैं। 12 पंचायत के अलावा 3 पंचायत ऐसे हैं जो सिवान डिस्ट्रिक्ट के करीब पड़ते हैं, तो वहाँ के पेशेंट वहाँ जाना पसंद करते हैं, और 3 पंचायत ऐसे हैं सर कि जो रिवर है वो रिवर में जोन में पड़ जाता है, और वहाँ जिसको दियरा क्षेत्र बोलते हैं, कनेक्टिविटी लो के चलते वहाँ से लोग आना पसंद नहीं करते हैं इधर। इसके सर एम एंड स्टेटमेंट मेजर्स की तरह से मैं व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो मैंने और नीचे प्रॉब्लम ऑफ लो नोटिफिकेशन ड्यू टू, चलिए लो पब्लिक नोटिफिकेशन ड्यू टू ज्योग्राफिकल रीजन, लैक ऑफ एलटी। सर वहाँ एलटी कुछ बहाल हुए थे बिहार गवर्नमेंट से, जो टीबी पर बहुत फोकस नहीं थे, उनको ट्रेनिंग टीबी के बारे में नहीं मिली हुई थी, सो उनके पास बहुत लैक कॉन्फिडेंस था, जिसके चलते हमारा रिपोर्टिंग भी नहीं हो रहा था, और लैक ऑफ ट्रेनिंग के चलते मैंने उसके लिए एक एलटी की बहाल की, इस दौरान दूसरे ब्लॉक से ट्रांसफर किया वहां पर। मैं आपकी थोड़ी समस्या को और बड़ा करके सबके सामने पेश करना चाहता हूं। तो जब आप कहते हैं डॉक्टर साहब के जो नोटिफिकेशन था वो जीरो होता, कम होता था, मैं आपसे फिगर जानना चाहता हूं कि कितना कम की डेफिनेशन क्या है, कितना नोटिफिकेशन आता था वहां से आपके पास? जैसे कुछ मंथ में तो हमारे 1-2 मिले हैं नोटिफिकेशन लास्ट के शुरू मंथ में सर। मतलब 0 मिला है, 1 मिला है, 0 मिला है, 1 मिला है, यहां से आपने शुरू किया है, ठीक है। अब आगे आप बताएं, जिससे कि ना मैं चाहता हूं कि जो बाकी डिटेल्स देख रहे हैं उनको मालूम चले कि एफर्ट किस तरह से रंग लाया है। जी सर, तो इसका ऊपर और थोड़ा नीचे where aim and statement, where the changes of aim and statement TU Majha will be increase the public notification and 2 cases to 10 cases, that is 400 within by 31st July using sensitization of ASA and key person at the panchayat level. बहुत अच्छे, तो इतना समझ में आया, आपकी टीम भी समझ में आई हमको। आप हैं और एसटीएस संजय कुमार जी हैं, एमओआईसी डॉक्टर खुर्शीद जामाल भी हैं, और एलटी रंजीत के आर रवि और राजेश कुमार सुमन, ये आपकी टीम का भी गठन हो। मैं एक्साइटेड हूँ आपकी रन चार्ट देखने के लिए। तो मैंने इसमें की पर्सन सेंसिटाइजेशन एंड नंबर ऑफ आशा सेंसिटाइजेशन, number of ASA sensitization and presumptive cases 9, number of public notification, so our team member is DTO and ASA workers. मैंने टीम मेंबर्स का बता दिया डॉक्टर साहब। जी सर। हाँ, हम अब रन चार्ट पे आ जाएं अगर आपको ठीक लगे तो। जी, आशा वर्कर हम कैसे कैसे गए हैं सर, आशा वर्कर का हाँ जी, यस। मैंने जब आशा लोगों के साथ मीटिंग किया, मैंने पंचायत लेवल पर मुखिया और वार्ड सदस्य लोगों के साथ मीटिंग किया, तो उसके पास मेरा ग्राफ नोटिफिकेशन का बढ़ना शुरू हो गया सर, और जिसके चलते मेरा जून और जुलाई में मेरा अच्छा मेरा नोटिफिकेशन हुआ। शुभांगी, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आउटकम मेजर्स का डेटा दिखाकर कि कैसे शुरुआत हुई और कहां तक हम पहुंचे हैं? यस सर। सो एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि आशा वर्कर्स के सेंसिटाइजेशन और पंचायत लेवल पे की पर्सन के सेंसिटाइजेशन के साथ साथ
डीटीओ सर ने जो एक स्पेशल इंटरवेंशन किया है वो है कि अपने जो एलटी हैं, एक सीनियर एलटी हैं, एक्सपीरियंस एलटी हैं, उनको उन्होंने टीयू मांझा में एक दूसरे टीयू से लेकर के पोस्ट किया और वहां पे जाके उन्होंने केस डिटेक्शन का काम जो है वो संभाला बहुत अच्छी तरह से, और उसके बाद केसेस जो है वो डिटेक्ट होने शुरू हो गए वहां पे, जिससे कि आप ये रन चार्ट जो है वो देख सकते हैं कि जो पहले मार्च अप्रैल के महीने में मई और जून तक में भी जब तक काम शुरू नहीं हुआ था, जब तक टीयू मांझा पे फोकस होना शुरू नहीं हुआ था, तब तक ये 1010 वाला ही डेटा है। और वो इंटरवेंशन जो सर ने पॉजिटिव डिविएंस का यहाँ पे लिया कि अपने ही रिसोर्स, उनके पास में एलटी थे पर उन्होंने देखा कि वो बहुत ही स्किल्ड एलटी हैं और सीनियर हैं, उनको वहां भेजने से वो वहां के नए एलटीज को काम सिखा भी पाएंगे और केस डिटेक्शन में काफी अच्छा काम हो पाएगा। तो सर ने ये जो सोचा और साथ में आशा वर्कर्स और पंचायत लेवल के लोगों को भी बताया इस टीबी मुक्त भारत के बारे में, तो उस वजह से आप देख सकते हैं कि जो 1010 चल रहा था अब वो 4 और 4 हो गया है। मतलब अभी तक जो टारगेट था 10 का, उसमें से 8 नोटिफिकेशन जो है टीयू मांझा पे अचीव कर चुके हैं। थैंक यू शुभांगी। डॉक्टर मनोज, साथ में कुछ पिक्चर्स हैं एंड आई विल बी कंक्लूडिंग। थैंक यू। Yeah, Dr. Manoj, I just wanted to highlight this. You know, you cannot change the geography. Yes. हम उस जगह की ज्योग्राफी नहीं बदल सकते, हम कनेक्टिविटी इंप्रूव नहीं कर सकते, हम नदी का कुछ नहीं कर सकते, हम डॉक्टर नहीं ला सकते। बट अगर सूझबूझ ही, इफ द ऑब्जेक्टिव रूट कॉज एनालिसिस इनका इतना बेहतर था कि वहां पर क्या भेजना है, तो एक सिर्फ एलटी समझदार को भेजने से, इमेजिन इफ दोस पेशेंट्स वुड हैव गॉन undiagnosed, undetected, how much of havoc they would have created in that team. So over to you, Dr. Jain. Yes, absolutely. Thank you, Dr. Saab. Yeah. So Dr. Arvind Kumar, excellent presentation. आपने 2-3 चीजें बताई है. One is कि even जब अपन को structural problems होती है, geography, वो change नहीं कर सकते. Even there is a way that we can change, we can have a strategy by changing the personnel and some way to make improvement. So we can overcome barriers of structural problems as well. So that is what you have shown to all of us. आपने सबको बताया कि देखिए कि structural barrier था और हमने उसको कैसे address करा. और दूसरी चीज आपने ये भी बताई कि जो increase the 4 cases every fortnight आपने जो increase करे, just imagine पिछले 6 महीने, पिछले 1 साल से उन केसेस ने कितने एडिशनल टीबी केसेस को कॉज करा. How many more cases must have occurred because we had missed those cases in that area. And वो सब DTOs को मुझे ये बताना है that what the PDSA helps us do is in concrete numbers. In concrete numbers, it tells us what we may have been missing, and then we can compensate and adjust for that and try to improve on that. So, Dr. Arvind Kumar, बहुत अच्छा काम आपने करा और आपने structural problems को address करा है, which is excellent. So, thank you, Dr. Manoj. मैं बिहार से ही अब अगला DTO प्रेजेंटेशन चाहूंगा. डॉक्टर देवेंद्र कुमार, स्वागत है आपका. आपका प्रेजेंटेशन पिछले 2 बारी से आगे चलता जा रहा है, तो इस बार हमने पकड़ लिया आपको. प्लीज अपना प्रेजेंटेशन करें. नमस्कार सभी को. नमस्कार डॉक्टर साहब, प्लीज गो अहेड. मेरी आवाज आ रही है सर? बहुत अच्छी, एकदम क्लियर और साफ मधुर आवाज आ रही है आपकी. थैंक यू सर. मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार, इंचार्ज DTO किशनगंज, बिहार. थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूँगा क्योंकि मेरी और भी लाइबिलिटीज़ है मेरे पर. मैं डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर नोटिफाइड हूँ और साथ में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऑफिसर के रूप में भी मेरा काम है. तो ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ थोड़ी सी समस्या मुझे आ रही थी. थैंक्स टू डॉक्टर सृष्टि ने मेरे को बहुत मदद किया है इस प्रेजेंटेशन के लिए, तभी जाके आज मैं ये प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ. आज सर मेरी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ
क्या आप म्यूट हो गए साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए एडविन, एक सेकंड। डॉक्टर देवेंद्र आपकी आवाज बंद हो गई, एक बार दोबारा अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अब सर? यस बेटर। थैंक यू सर। वो असल में सर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रिव्यू मीटिंग अभी चल रहा है, वहां से मैं बाहर आके दूसरे रूम में आके बात कर रहा हूँ, इसीलिए परेशानी हो रही है सर। तो सर ये हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ बेसिकली जब हम ज्वाइन किए थे उस समय भी नोटिफिकेशन यहाँ का कम था, और तो डॉक्टर सृष्टि से बात करने के बाद हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट लिया कि इस नोटिफिकेशन को 5% तक भूमिका कंटिन्यू करो। Sir, so their aim statement was कि in district Kishanganj, Bihar, we will increase public notification by 5% in 2 months, and they'll be sensitizing the medical officer, ASHAs and ANMs and all the ground level staff. So basically they focused on utilizing the Anganwadi workers and the ground level staff to do the sensitization activity. So the process measure were to as to number of ASHAs, ANMs and ground level staff sensitized, and the WhatsApp messages they had started sending to the medical officer in charge. So they started keeping a record of the WhatsApp messages that they are sending for the sensitization activity. So here is the run chart wherein here we can see the number of sensitization done for the ASHAs and ANMs for each month within a span of 15 days. And next is the number of WhatsApp messages. So in March, they were not sending any messages, and then in their intervention month between 1 to 15 July, they had almost sent 30 WhatsApp messages in 15 days. So this has definitely helped in improving the notification. So their target, since we can see that it was 144, and in June itself they achieved 160, and they are still working upon it to increase the notification by the end of July. Thank you, Bhumika. Dr. Jain. Excellent work. So lots of information packed there. What we can see is that when a process measure is happening, the outcome measure follows. It may be a little bit of a lag, but we saw an outcome measure 51 was the highest that had come up in some of the process measures that will lead to an increase in your outcome measures as well. So again, DTOs, there is always a relationship between the process and the outcome. Sometimes it is delayed. And if it is not happening, then what one needs to do is to just do a second level of root cause and see what is happening. So excellent work. Thank you, Dr. Jain. It is time for me to invite Dr. Nayak, DTO Aravali from Gujarat. Dr. Nayak, welcome. Please make your PDSA presentation. And Shubhangi, if I request you to kindly start sharing the screen. Good evening, sir. Good evening, Dr. Nayak. Sir, myself, Dr. Ashish Nayak, District TV Officer. सर 1 साल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एज अ डीटीओ काम कर रहा हूँ। पहले मैं मेडिकल ऑफिसर था। अरवली सर इज 6 टीयू है मेरे यहाँ, उसमें से 2 टीयू ट्राइबल पॉपुलेशन है और 1 हार्ड टू रीच एरिया वाला टीयू है और 3 टीयू सेमी अर्बन में आते हैं। दूसरा सर अरवली में बात कर लूँ 37 PHI है, 10 CSC है, 1 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और 2 अर्बन हेल्थ सेंटर है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ कोई हमारा सिविल हॉस्पिटल नहीं है, जिससे हमको नोटिफिकेशन में दिक्कत हो रही थी। और मोड़ा सा एक टाउन प्लेस ऐसा है कि वहाँ सारे प्राइवेट वाले डॉक्टर्स हमारे ज़्यादा हैं, 40 के आसपास प्राइवेट फैसिलिटी है, जो राजस्थान के भी दर्दी हमारे यहाँ आते हैं। तो पहले हमारा नोटिफिकेशन में जब ज्वाइन हुआ तो 70% के आसपास ओवरऑल नोटिफिकेशन रह रहा था। बाद में हमने 1 साल हमारे पब्लिक सेक्टर पे काम किया तो हमारा 100% के अप नोटिफिकेशन हो गया था। और जब हमारा ये ट्रेनिंग सेशन शुरू हुआ तब हमारा नोटिफिकेशन 89% था। तो बाद में हमने सारा ट्रेनिंग में से हमने लर्न किया और हमारे जो गाइड थे उनसे भी हमने काफ़ी कुछ गेन किया। उससे हमने बाद में PDSA साइकिल इम्प्लीमेंट किया
तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि हमारा नोटिफिकेशन जो 89% है उसको 5% इम्प्रूव करके आगे ले जाना है। तब हमारा बेसलाइन नोटिफिकेशन प्राइवेट का 217 था, उसको आगे बढ़ा के 228 हमको ले जाना था। तो उसके लिए हमें प्रोसेस जो मेजर हमने आइडेंटिफाई किए हुए थे कि हम ये प्रोसेस मेजर पे हम काम करेंगे। तो जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको हमारे STS PBHV उनको मिलेंगे, सेंसिटाइज करेंगे। दूसरा, जो प्राइवेट डॉक्टर्स मोस्टली क्या नोटिफिकेशन जो करते थे तो वो क्लिनिकली डायग्नोसिस करके एक्सरे फैसिलिटी का यूज करके मोस्टली कर रहे थे। तो हम वैसे ज़्यादा चाहते थे कि वो स्पूटम हमको DMC सेंटर, गवर्नमेंट DMC सेंटर पर भेजे और वहाँ से माइक्रोबायोलॉजिकल कंफर्म हो जाए। और मेरे यहाँ सेंटर है वो DMC सेंटर एज वेल एज टूनेट और सिविनेट सेंटर है। तो उसके लिए भी हमने डॉक्टर्स को बाद में की कि आप हमारे यहाँ स्पूटम भेजे तो MDR दर्द है कोई है, और बाद में रिप्रेजेंट आता है उसको हम कल्चर के लिए मेडिकल कॉलेज में भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए भेजेंगे। तो ये सारे डॉक्टर्स हमारे कन्वीनियंस हुए। एक बार हमने सभी डॉक्टर की सेंसिटाइज मीटिंग भी हमारा ट्रेनिंग शुरू होने के बाद हमने करवाई थी। तो सभी डॉक्टर्स को हमने ट्रेनिंग की और सेंसिटाइज किया कि उनको नोटिफिकेशन के लिए 500 रुपये मिलते हैं, आउटकम के लिए भी हम उनको पैसे सेशन करने से मिलते हैं। दूसरा, जो स्पूटम जो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम स्पूटम कलेक्ट भी आपकी हॉस्पिटल से करवाएंगे और आपको रिजल्ट भी उसको फीडबैक देंगे। तो ये सारे, और दूसरा जो भी स्पूटम हमको भेजेंगे उसमें से जो स्पूटम आ रहे हैं तो क्वालिटेटिव स्पूटम क्या थे तो उस पर भी हम मॉनिटरिंग करना चाहते थे। तो वन ऑफ द हमने मेजरिंग इंडिकेटर रखा था कि आउट ऑफ टोटल स्पूटम हाउ मेनी आर द सलाइवा स्पूटम इज कमिंग। तो धीरे धीरे तो ये सारे इंडिकेटर पे हम काम कर रहे थे। तो बाद में हमको आउटकम जो मिला तो हमारे जो TBHV STH से तो जुलाई में जून में फर्स्ट फोर्टनाइट में 21 के टाइम गए थे, सेकंड पार्ट में 24 टाइम गए थे और जुलाई में 25 टाइम गए थे। तो उनकी रेगुलर विजिट भी सभी डॉक्टर से बढ़ने लगे। और ओवरऑल बाद में हमने उनका जो डॉक्टर्स का स्पूटम हमारे यहाँ DMC सेंटर एज वेल एज टूनेट साइड पे आ रहे थे वो भी हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो वो भी सभी सैंपल भी आना शुरू हो रहा हुआ। अब तक डॉक्टर क्लिनिकली डायग्नोसिस करते थे वो भी आना शुरू हुआ। दूसरा, जो भी जो क्वालिटी पार्ट था वो भी इम्प्रूवमेंट हुआ। आप सभी चार्ट देख सकते हो कि 21.7% से 71% हमारा जो क्वालिटेटिव स्पूटम है वो इंक्रीज होना शुरू हुआ है। तो ये सारा पार्ट हमारा इंक्रीज हुआ और नोटिफिकेशन भी हमें धीरे धीरे बढ़ने लगे। हमने साथ में एक नया इनिशिएटिव भी साथ में लिया था कि सभी डॉक्टर्स को, पहले हमारे TBHV और STH जाते थे तो उनको डॉक्टर्स के वहाँ जाके सारा डेटा ढूंढना पड़ता था, टाइम कंज्यूमिंग रहता था, इनकम्प्लीट डेटा उनके पास से आ रहा था, कभी कभी दर्दी का इनकम्प्लीट एड्रेस हो, फोन नंबर नहीं हो, ये सारा दिक्कत रहता था। तो ये हमने फॉर्म पहले बनाया हुआ था अलग DTO ने, लेकिन एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना था वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके थे। तो बाद में हमने ये फॉर्मेट लेके आगे बढ़े और इम्प्लीमेंट के 100% जो कंप्लीशन डेटा एंट्री के साथ वो फॉर्म आने लगा। तो हमें जो TBHV और STH जाते थे तो उनका टाइम कंज्यूमिंग जो टाइम हुआ डेटा रिट्राइव में जाता था वो कम होने लगा और सारा डेटा मिलने लगा। कोई भी पेशेंट मिस आउट होना कम हो गया। डॉक्टर्स का वो साथ में उसमें हमने बैंक डिटेल और IFC को जो DBT NPY के लिए चाहिए था वो भी हमने उसमें मेंशन करवाना शुरू किया और हम उसको आगे लेके जाएंगे तो आउटकम तक उसमें ही मेंशन रहेगा। तो सभी डॉक्टर्स का ऐसे हमें उनके पास भी रिपोर्ट रहेगा और हमारे पास भी वो सारा रिपोर्ट रहेगा। तो ये सारा हमको एडवांटेज मिलना शुरू हुआ। और हमेरा बेसलाइन 217 हमेरा जो नोटिफिकेशन था और टारगेट 228 रखा था। अब तक हमने अचीवमेंट 228 आउट ऑफ 228 168 कर दिया है और 100% श्योर है कि जुलाई अंत तक हमें टारगेट अचीव करेंगे। दूसरा सर, आपको सभी को बताना चाहूंगा कि जब ये हमारा ट्रेनिंग सेशन शुरू हुआ तब हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का जनवरी से अप्रैल तक 89.8% प्राइवेट नोटिफिकेशन था। तो आगे जो हमने 2 महीने में काम किया उसमें 91.6% इम्प्रूवमेंट हुआ, मतलब कि 2% हमें आगे बढ़ सके। दूसरा, साथ में ये सारा इम्प्लीमेंट किया तो ऐसा नहीं है कि हम पब्लिक में प्राइवेट में ही इम्प्लीमेंट किया, तो साथ में प्राइवेट में भी हमने इम्प्लीमेंट यही स्ट्रेटेजी के आगे बढ़े। तो उसमें हमेरा तब 122% नोटिफिकेशन था। वो आप सभी को बताने से आनंद होगा कि वो बढ़ के 2 महीने में 134%, मतलब कि 12% इम्प्रूवमेंट
का मेरा नोटिफिकेशन हो रहा है। दूसरा ये भी बताना चाहेंगे कि सभी हमारे डीएमसी जो 46 डीएमसी थे वो सभी भी अभी 0 डीएमसी, हर महीने कम से कम एक केस तो माइक्रोस्कोपी डिटेक्शन होना शुरू हुआ। दूसरा ये सारा ये इम्प्लीमेंट करने से हम प्राइवेट सेक्टर पे ही ये PDSA ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया था, तो वो बताना चाहूँगा। तो साथ में जो डॉक्टर सैंपल भेजते थे वो सभी के हमारे ट्रूनेट LT और DMC LT जब जैसे ही उसका स्पूटम रन होता था और रिजल्ट आता था तो एज अर्ली एज पॉसिबल 4 से 6 घंटे में उसको डॉक्टर्स को वापस रिपोर्ट करना व्हाट्सएप माध्यम से कर रहे थे। तो डॉक्टर को भी अर्ली उनको रिपोर्ट मिल जाता था। पहले वो पेशेंट का एक्सरे करवाते थे तो डॉक्टर पेशेंट को भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो रहा था, एक्सरे का उनको एक्सपेंड करना पड़ता था। तो अब 0 आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो निदान करना चाहिए, हमारा जो एम्स है, जो थर्ड इंडिकेटर है कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट, हम 0 तक ले जाएंगे तो वो भी दर्दी को भी फायदा होने लगा। और दूसरा जो ये 2 महीने एक्सरसाइज करी तो एक MDR पेशेंट भी हमारा डिटेक्ट हुआ, वो हमने फीडबैक डॉक्टर्स प्राइवेट डॉक्टर्स को दिया। तो उसके हिसाब से उनको भी पहले तो वो DST के हिसाब से ही अपने रेजिमेंट से ही दवाइयाँ दे रहे थे, तो उसमें भी ये फिर चेंज आया। तो डॉक्टर्स को भी अच्छा लगा कि हम, और वो भी ट्रीटमेंट हम गवर्नमेंट से फ्री ऑफ सप्लाई कर रहे हैं MDR की भी, तो डॉक्टर्स को भी फायदा हुआ। और साथ में साथ जो पेशेंट का भी उनका भी सेटिस्फेक्शन बढ़ने लगा, उनको भी अच्छी दवाइयाँ मिलने लगी फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होने लगा। साथ में हमारा स्टाफ भी जो था, जो डॉक्टर्स के पास जाता था, उनका रेपो बढ़ा और उनका अब सेटिस्फेक्शन बढ़ने लगा है, क्योंकि उनका टाइम कंज्यूमिंग रहता था। एक हॉस्पिटल में जाते तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता था डेटा लेने के लिए, तो ये सारा तो अब कम टाइम जाने लगा, सारा कंप्लीट डेटा आने लगा, तो इजीली हम नीचे में एनरोल करने लगे सभी। तो 100% हम बता सकते हैं 89%, 92 हम बहुत थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन जो क्वालिटेटिव पार्ट था उसमें हम ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। दूसरा, दर्दियों का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होने लगा, ये ज़्यादा फायदा हो रहा है। हमारा जो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री है, उनका जो विजन है कि TB एलिमिनेशन के लिए जाना है, तो ये सारा आपकी ट्रेनिंग हमको बहुत हेल्पफुल रहेगी और आगे जाएंगे पब्लिक और एज वेल एज प्राइवेट में भी हम ये सारा इम्प्लीमेंट करेंगे तो अच्छे रिजल्ट हमको 100% मिलेंगे, हमको खातरी है। तो ये सारा, और थैंक्स टू जो पार्टनर्स है, जिस सभी ने जो हमारे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया, साथ में साथ जो हमारे काउंसलर और जो टीम लीडर थे उन्होंने भी बहुत हमको सपोर्ट किया है। थैंक यू डॉक्टर नायक। आप इतना पैशन से और इतना मोटिवेशन से बोल रहे थे, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपको टोक के रोकूं या थामूं। So thank you, Dr. Manoj. So lots of things, Dr. Ashish, many things I want to highlight, and I know time is short, but I'm going to mention them. So few things. You talked about quality of sputum, which is really important. आपने क्वांटिटी नहीं देखी, बस आपने क्वालिटी भी देखी। फिर आपने बहुत अच्छा करा that you change that quality into a quantitative measure. That you sputum quality, you turned it into a quantitative measure, which is excellent work. And second, you standardized. आपने जो form, you take that form, you standardized it, and you said this is what form we're going to use. And that उससे क्या होता है कि आपका काम easier हो जाता है, वो आपके private doctors का काम easier हो जाता है. Standardization is excellent. It helps a lot. और आपने तीसरी चीज ये देखी कि अगर आप ये एक मेजर पे काम करते हो तो दूसरे मेजर्स भी बेनिफिट होते हैं. You see, you saw the collateral impact of improving one thing, and then अपन बोलते हैं collateral damage, but this is collateral benefit that one is seeing from one to the other. मुझे एक लास्ट चीज ये बोल दी है, आपने प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ काम करा, कोई ऐसा कोई एक प्राइवेट डॉक्टर था जिसने आपके साथ ज्यादा इंटरेस्ट लिया? Was there one doctor that was there in the team जो आपके साथ आपकी जानकारी है? एक दो होंगे? ओके सर, पहले 2-3 डॉक्टर ऐसे थे कि वो ज्यादातर क्लिनिकल पे, वो पब्लिक पे ज्यादा भरोसा नहीं रखते थे कि हम आपको स्पूटम भेजेंगे, अर्ली डेटा नहीं मिलेगा, हमको रिजल्ट कब मिलेंगे, तो उनके मन में सारे कुछ डाउट थे। लेकिन जैसे हमने उनका रिजल्ट आना शुरू हुआ, हमने जो स्पूटम भेजना शुरू हुआ, तो हमने इतनी भी एश्योर किया था कि उनको 4 या 6 घंटे में उनको रिजल्ट मिलके वापस चला जाए। तो हमारा फीडबैक इतना हमने मॉनिटरिंग करना शुरू किया था, तो उनको अब लगने लगा है कि ऐसा गवर्नमेंट नहीं है जैसा हम सोच रहे थे, तो उनको बहुत ट्रूली फील कर रहे हैं। दूसरा,
उनका कल्चर भी जो रेसिस्टेंट है उनका कल्चर भी हम मेडिकल कॉलेज में भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि उसका रिजल्ट भी हम आपको फीडबैक में देंगे और उसकी दवाइयाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट दर्दी को हम देंगे। तो उनको बहुत अच्छा लगने लगा है और ये बहुत अच्छा रहा सर एक्सपीरियंस उनके साथ। सो बहुत अच्छा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उनमें से 3-4 जो डॉक्टर्स जो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, आप उनमें से एक को चूज करो, बस एक, और मेक हिम और हर पार्ट ऑफ योर टीम। आप उनसे बोलो कि भाई आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस हमारी 4 लोगों की टीम में जाओ और हमको गाइड करते रहो, और उनको बस फोन पे, स्पीकर फोन पे 15 मिनट आप ले लो जब आपकी मीटिंग हो रही है, और डॉक्टर साहब हम ये सोच रहे हैं, क्या सोचते हो आप, और उनका नाम भी आप अपने टीम मेंबर में लगा दो। क्या टीम मेंबर डॉक्टर मनोज जैन और प्राइवेट प्रैक्टिशनर, तो क्या होगा, उनको भी लगेगा अरे ये मेरी बात सुन रहे हैं और आप जेन्युइनली सुनेंगे और आपको नए आइडियाज आएंगे। सो एक्सीलेंट वर्क डॉक्टर आशीष, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छा काम ऐड ऑन करना चाहूंगा, हमने यहाँ जो भी जितने भी हमारे रेडियोलॉजिस्ट थे उनका भी सारा एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हुआ है और उनके पास जो भी एक्सरे पड़, हमें सभी डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़ता, रेडियोलॉजिस्ट बहुत कम है, तो बहुत जो टीबी केस डिटेक्ट होता है वो डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप ग्रुप पे अब से शेयर करना वो शुरू हो गए हैं। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो उससे हम आगे बढ़ रहे हैं सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर आशीष। और इसी माहौल को, इसी पॉजिटिव माहौल को डॉक्टर मनोज हम आगे ले जाते हैं। एंड आई वांट टू नाउ ब्रिंग इन डॉक्टर रमेश कंवर, DTO गढ़वाल उत्तराखंड, to once again see a very very noble approach, a very very different approach of getting the outcomes and result. So Dr. Ramesh, स्वागत है आपका। Please share your PDSA. I know your PDSA is doing very well, but I want आपसे सुनना चाहेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। सर मैं पौड़ी गढ़वाल से DTO डॉक्टर रमेश कुमार बोल रहा हूँ सर। तो अभी पौड़ी जो जनपद है हमारा, यहाँ पे उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एक्चुअली में, तो इसमें 15 ब्लॉक्स हैं सर। तो 15 ब्लॉक्स में सर जैसे अमूमन सभी पहाड़ों की जो एक ज्योग्राफिकल ट्रेल होती है वही ट्रेल हमारी भी है। इसमें सर बहुत छोटे से अर्बन एरियाज आते हैं हमारे, जैसे दुगड्डा ब्लॉक एक है हमारा, और जिसमें कोटद्वार अगर आपने नाम सुना होगा तो सर। दूसरा एक खिरसू ब्लॉक है जिसमें श्रीनगर सर एक जगह है। तो यहाँ पे हमारे 2 जो अर्बन क्षेत्र पड़ते हैं, एक बहुत छोटा सा अर्बन क्षेत्र लक्ष्मण झूला ऋषिकेश के पास में पड़ता है सर। तो बेसिकली सर इसके पीछे ये था कि हमारा जो एम्स स्टेटमेंट था इसमें ये था कि इन 3 ब्लॉक्स में हमने और दुगड्डा ब्लॉक में वी हैव टू मतलब इंक्रीज और प्राइवेट नोटिफिकेशन बाय 5% विदिन बाय 2 मंथ यूजिंग sensitization of pharmacies, sensitization of non-allopathic doctors, sensitization of NTP staff. So then sir इसके बाद जो हमारा सर प्रोसेस मेजर रहा, जो इसमें प्रोसेस मेजर में ये रहा कि प्रोसेस मेजर इज द नंबर ऑफ फार्मेसिस्ट सेंसिटाइज, जो हमने किए सर 256 फार्मेसिस्ट हमने सेंसिटाइज किए थे यहाँ पे। क्योंकि सर फार्मेसिस्ट सेंसिटाइज करने के पीछे जो अप्रोच हमारी ये थी कि जो हमने ऑब्जर्व किया है वो ये क्या कि बल्कि फार्मासिस्ट एसोसिएशन की एक दिन ऐसी बात हो रही थी एक्चुअली में सर, मेरे पास एडिशनल CMO का भी चार्ज है यहाँ पे, NHM का नोडल और डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर भी हूँ, साथ में DTO भी हूँ सर, और 2 ब्लॉक का प्रभार भी है मेरे पास यहाँ पे। तो एक्चुअली में फार्मेसिस्ट एसोसिएशन वाले आए थे, तो उनसे ये बात हो रही थी कि अचानक बीच में एक बात निकल के आई कि भी कि फार्मेसिस्ट जो एक की पर्सन होता है एक हॉस्पिटल की, मतलब रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन उसको किसी भी प्रोग्राम से जोड़ा नहीं गया है अभी तक जो हमने ऑब्जर्व किया। तो मैंने उनसे खाली एक इनिशिएटिव लेके कहा कि उनके एसोसिएशन से कि सर अगर आप लोगों को कोई प्रोग्राम में इन्वॉल्व करते हैं तो क्या आप इन्वॉल्व होंगे? तो वो बोल रहे थे कि हम तो ऑलरेडी होना चाहते हैं, बस हमें कोई करता नहीं है। तो इस वजह से हमने सारे ही फार्मासिस्टों को किया था इसमें सेंसिटाइज। तो फार्मासिस्ट एक्चुअली में बहुत टाइम से इनका ट्रांसफर भी एक जगह से दूसरी जगह होता नहीं है। जो अर्बन क्षेत्र में जो फार्मासिस्ट था वो 10-10, 15-15 साल से हुए यार, उसकी बल्कि डॉक्टर जो हैं वो 1-2 साल पुराने हैं वहाँ पे। तो फार्मासिस्ट की लोकल और प्राइवेट प्रैक्टिशनर में अप्रोच ज्यादा थी, इस वजह से हमने फार्मासिस्ट को वहाँ पे सेंसिटाइज करना शुरू किया था। फिर दूसरा सर हमने नंबर ऑफ नॉन एलोपैथिक जो डॉक्टर सेंसिटाइज करने के लिए हमने किया था, लेकिन जैसे हम इसका रेट चार्ट देखेंगे तो सर यहाँ पे अभी हमें परमिशंस की थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी। तो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक अधिकारी अभी तक इन्वॉल्व यहाँ पे जब से रिटायर हुए हैं तो किसी ने अभी तक चार्ज नहीं दिया है, लेकिन हमने क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू जितने भी रजिस्टर्ड यहाँ पे डॉक्टर्स थे उन सबका नंबर, फोन नंबर, एवरीथिंग हमने ले लिया। बहुत ही सून हम इनको सेंसिटाइजेशन के लिए बहुत स्पीड से इनको सेंसिटाइज करेंगे, क्योंकि सर इस एरिया में हमने इसको सेंसिटाइज करने का
मतलब ये था कि जो अर्बन एरिया में जो हमारे नर्सिंग होम्स थे, जहाँ पे, क्योंकि अर्बन एरिया में 11 तो हमारे जो रजिस्टर्ड हैं निश्चय में वो कोटद्वार में है और 2 हमारे खिरसू में थे। तो हमने देखा कि इनका एक चैनल सा बना हुआ है जिसमें जो आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या नेचुरोपैथी वाले डॉक्टर्स जो फील्ड में बैठते हैं वो लोग अपने पेशेंट्स ज़्यादातर रिफरल के आधार पे, मतलब जो नर्सिंग होम ओनर्स होते हैं उनको भेजते हैं बजाय के सरकारी अस्पताल के। तो यहाँ पे एक सेंसिटाइजेशन की बहुत ज़रूरत थी। अगर वहाँ से अगर पेशेंट डायरेक्ट रेफर भी हो रहा है किसी नर्सिंग होम में तो वो वहाँ पे प्राइवेट में से नोटिफाइड करके हमें करा दे। तो इसके पीछे ये आइडिया था हमारा नॉन एलोपैथिक डॉक्टर्स को सैनिटाइज कराने का। तो सर तीसरा था हमारा नंबर ऑफ एनटीपी स्टाफ मेंबर सेंसिटाइज, और ये लगभग सेंसिटाइज ही है और हम रिकरेंटली सेंसिटाइज करते रहते हैं। तो सर आउटकम मेजर इज ए नंबर ऑफ, वो हमारा इसमें 5% मतलब जो भी है नंबर ऑफ प्राइवेट नोटिफिकेशन, इसको देखना था। तो सर मेरी जो टीम थी इसमें बहुत सारा चार्ज होने की वजह से ये बहुत अच्छा हुआ कि सही समय पे मुझे यहाँ पे एमओटीसी मिल गई थी, डॉक्टर रुचि। तो ये मेरी एमओ यहाँ पे साथ में पीडीएसए टीम में थी, और डीपीसी मिस्टर दामोदर ममगाई थे, एसटीएलएस शैलेंद्र चमोली थे, एसटीएस आशीष रावत भी थे। और इसके अलावा हमने जो टीम फॉर्म की सर, हमने इन ब्लॉकों में एक मिनी टीम भी फॉर्म की जिसमें हमने जो एमओसिस को, ज़्यादातर मैंने देखा कि बहुत कोविड और ये सब बहुत सारे प्रोग्राम और काफ़ी जो प्रोग्राम फील्ड में चलते रहते हैं तो उसकी वजह से एमओसी को इतना चार्ज नहीं मिल पाता था। तो हाँ, हमने क्या किया कि हर एक एमओसी से एक एमओ को डेडिकेट मांग लिया कि आप अपना एक एमओ दे दीजिए अपने ब्लॉक से जो कि फील्ड में सिर्फ टीवी का काम देखेगा। तो सर इस तरीके से हमने जो 3 ब्लॉक थे यहाँ पे से एक उन्होंने जो डेजिग्नेट किया एमओ, तो उनको हम लाइव और उनको एज ए मतलब फील्ड नोडल ऑफिसर बनाया टीवी का। तो इसमें सर हमने क्या किया कि जैसे प्राइवेट नोटिफिकेशन जितने प्राइवेट डॉक्टर्स के पास ये लोग जाते हैं तो सर हम मंडे को क्या करते हैं कि एक डॉक्टर सेल्फी डे भी मनाते हैं कि जो हमारे डॉक्टर्स खुद फील्ड पे जाते हैं और वो फार्मासिस्ट को और अलग अलग मतलब हॉस्पिटल्स में और जिस एरिया की यूपीएससी है या पीएचसी है वो फार्मासिस्ट को लेके वहाँ के प्राइवेट प्रैक्टिशनर से मिलने जाते हैं, वो उनकी जान पहचान के रहते हैं, उनके साथ एक सेल्फी डे मनाते हैं। जैसा आप सर इस फोटोग्राफ्स में देखेंगे कि इस तरीके के ये डॉक्टर ये गैरोला जी हैं श्रीनगर के, इन्होंने बीच में क्या करना शुरू, ये पहले प्राइवेट नोटिफिकेशन देते लेकिन उसके बाद ये पता नहीं क्यों इन्होंने हर पेशेंट अपना टीबी का सरकारी अस्पताल में रिफर करना शुरू कर दिया था। तो फिर से हमारे डॉक्टर्स इनके पास गए एज ए मंडे को सेल्फी डे मनाने के लिए। इन्होंने फिर उन्हें सेंसिटाइज किया कि सर आप अपनी तरफ से प्राइवेट नोटिफिकेशन बढ़ाइए क्योंकि आपके वहाँ से अब से फिर से रिफरल होने लग गया। तो इसी तरीके की सर थोड़ी सी अप्रोच हमने करी थी। तो इसका सर थोड़ा हमने ये था कि थोड़ा सा हमारा जो ये पीडीएसए का जो स्पीड काम था थोड़ा लेट शुरू हुआ था, तो इस वजह से सेंसिटाइजेशन आप देखेंगे सर 15 से 30 अप्रैल में जो हमने सेंसिटाइजेशन किया है फार्मासिस्ट का, ये 15 to 30 में 15 लोगों का किया था। फिर उसके बाद जो फोर्टनाइट थी मई की सर 40, फिर उसके बाद 65, फिर 115, देन 140 तक हम ले गए थे। और सर इसके बाद इसके नॉन एलोपैथिक डॉक्टर्स का सर हमने जैसे कहा कि वही अभी जैसे मैंने पहले भी कहा कि सीए के थ्रू हम इनको अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि अभी इनका कोई डिस्ट्रिक्ट नोडल नहीं आया और इसका प्लान हमारे पास पूरा मैप आउट हो चुका है। और सर एनटीपी स्टाफ तो ऑलरेडी हमने पहले भी इन्हें सेंसिटाइज करते हैं, लगातार सेंसिटाइज रहते ही हैं। और इसका जो आउटकम मेजर जो आया है सर, ये जो हमारा 15 to 30 अप्रैल का था वो 25 था और हमें 5% सर इसमें ग्रोथ करनी थी जो कि हमारी ट्रेंड इसमें 27 आया है सर 1 से 14 जून के बीच में। और अभी तक सर हमारा लगभग ये करंटली 22 हो गया है। तो अभी सर विद इन 4-7 डेज में सर हमारा जरूरी है, और इसके बाद सिर्फ 4-7 डेज में नहीं, इसके बाद जो आने वाला मंथ है उसमें भी शायद हम और अच्छे तरीके से और अच्छा अचीवमेंट कर पाएंगे सर इसमें। तो सर इसमें सर हम जो बेसिकली अब जो अडेप्ट करने वाली चीजें हैं तो ये 2-4 चीजें और कुछ चीजें इसमें अडेप्ट करेंगे कि ताकि हम अपने प्राइवेट नोटिफिकेशन को बढ़ा पाएं सर। Excellent work, Dr. Kunwar. 2-3 चीजें I'll point out that आपने बताई है and for others. So अपन सोचते हैं, we think that whenever we get additional responsibility that it is more work on me. So आपने क्या करा कि you use that additional responsibility to your advantage. What you did was you saw that there was other responsibilities and then you used those individuals and contacts in order to then get your message out for TB.
So that's excellent work, and that is what I will say to all the DTOs. DTOs, आप देखिए कि आपको कभी दूसरी responsibility या दूसरा work मिलता है, तो आप उस काम के जब करेंगे तो आप लोगों से मिलेंगे. You meet other medical officers, pharmacists, and others, and you can take advantage by then having them be engaged in the TB notification, TB awareness, and so forth. So ये बहुत अच्छा है. Also, the fact that we're talking about sensitization. So what is really good is that you took these ideas and then you put it on paper again, getting them to be involved, and then taking selfies. Photos are an incredibly important part of engaging. अगर दूसरे doctors देखेंगे कि yes, you know, so and so, you know, Dr. Joshi or you know, Dr. Alapati was involved in this program, then they automatically join in. And that is a new generation and new strategies that we're doing in technology. So please use these technologies to your advantage. So great work, Dr. Kanwar, excellent work. Thank you, Dr. Ramesh. Thank you, Dr. Manoj. And absolutely, Dr. Manoj, जो point मैंने भी पकड़ा है, वो selfie वाला है. To all my counselors and team lead, this is a positive deviance point. Please write it down. Okay. Very simple way of celebrating a selfie day. कि अगर आपकी आशा वर्कर कहीं गई हैं कि नहीं गई हैं, सेल्फी लेके आ जाएं, because it is a data, it is an evidence. Okay. वो अगर सेंसिटाइज करके आए हैं डॉक्टर्स को, एमओस को, कॉलेज में प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को, सेल्फी लेकर आए, it becomes a data, it becomes an evidence. Okay. So it is a very acceptable form of collecting data, and selfie day, please mark, and we will use it as positive evidence point for everybody whenever we talk about it. So thank you. And now we move on to the last presentation for the day. मैं invite करना चाहूँगा DPTC Ambedkar Nagar UP Arvind Kumar Pathak ji ko. And the good part is, you know, actually the name, the official name of Mahu also is Dr. Ambedkar Nagar. So हम अम्बेडकर नगर महू में बैठे हैं और मैं इस वक्त अम्बेडकर नगर यूपी को इनवाइट करता हूं. बहुत अच्छा पीडीएसए आपका चल रहा है. अरविंद जी, आप प्लीज प्रेजेंट करें. गुड इवनिंग सर, मैं अरविंद कुमार पाठक, डिस्ट्रिक्ट पीएमडीटी कोऑर्डिनेटर, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से. सर, जनपद की आबादी 25,67,000 है, जिसमें से एक QDTC अकबरपुर का चयन किया दूसरे के लिए पब्लिक नोटिफिकेशन में. सबसे पहले हम लोगों ने जो आशा और CHO का सेंसिटाइजेशन किया, प्रशिक्षण दिया है, और उसके उपरांत जो है सर पब्लिक नोटिफिकेशन काम किया गया, मई से काम किया गया है. तो सर तब CHO आशा का प्रशिक्षण दिया गया. स्तर पर एक टीम बनाई गई और टीवी तथा जो CHO. अरविंद जी, आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए. थोड़ी सी आपकी आवाज लड़खड़ा रही है, वीडियो बंद कर दीजिए. पानी बरस रहा सर. हाँ, इसीलिए. हाँ, अब आपकी आवाज आई, बोलिए. अरे CHO आशा का जो सेंसिटाइजेशन किया, उसके वजह से हमारा जो टारगेट है बढ़ा है, 104 से 118 पहुंच गया 2 महीने में. और जो टीम हमारी है, टीम भी बराबर काम कर रही है. और आप स्लिप देके आशा को स्लिप दिए हुए हैं कि जो रेफरल स्लिप होती है, रेफरल स्लिप और रजिस्टर से मिलान किया जाता है, जहाँ हफ्ते में 1-2 बार जो उधर भ्रमण करता है जो टीम का मेंबर है. इसलिए अचीवमेंट पब्लिक नोटिफिकेशन बढ़ रहा है सर, और आगे बढ़ाते ही रहेंगे. बहुत बढ़िया. मुझे ये उम्मीद थी कि अरविंद जी कम बोलते हैं. एक बार एकता, प्लीज शो दी रन चार्ट अगेन. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, and Ekta, kindly do the needful. Yes, sir. So the baseline was 104, March 15 to 30th April, and he already started working 1st of April. It reached up to 118 तक ये पहुंच गया है. टारगेट 119 था, तो 118 तक अभी तक पहुंच गया है, और ये आगे कंटिन्यू उसे टैप करते हुए कंटिन्यू कर रहे हैं. Thank you, Dr. Manoj. Excellent. So again, we can see that process measures and outcome measures, and even during the training days, we can increase
and the engaging of the ASHA workers, very important. Private sector, again, having them be involved and getting the public sector to be able to increase. Now, the question always comes, how much are we going to be able to increase? So again, DTOs, remember that your notification is going to go up and then it's going to peak. And then with sustained levels, especially your presumptive sputum examination, sustained level, then it will begin to come down. So very important point. This is not a one-time thing. This is a journey. तो मैं आपको ये सब emphasize करूँगा कि जो चीज़ आप कर रहे हैं उसको adapt कर रहे हैं and then make it it's a long process. It's a long journey, but then you will be very, very well rewarded by that decline in the number of cases over time. So just to keep that in mind, excellent work. So with this, Dr. Manoj, it has been a wonderful day today. And I think overall 50 से ऊपर presentation लगभग हम 50 तक पहुंच चुके हैं. Presentation BTN की हो चुकी हैं और 430 का करीब आंकड़ा है जो हमारे DTOs एक्टिव चल रहे हैं, जहां पर PDSA लगातार चल रहा है, काउंसलर्स एंगेज्ड हैं और 330 करीब लगभग आंकड़ा चल रहा है जो कि PDSA का डेटा आ चुका है और वो कंप्लीशन पे है. So this figures I am sharing, counselors, it is all your hard work. Okay, give it one more push, one more go. It is just the last 1 week. Don't ease your leg. Keep the accelerator down, pressed. Okay, don't let the speed come down. And DTOs 29 July, अगले Friday को हमारा closing ceremony है. Please, you have to make sure that you attend. And we will give you your golden certificates. All the DTOs who have successfully completed, majority of you have. Make sure your STOs are present. Inform them, advise them. A formal email from CTD and from CTI is on its way to your STOs. And we would like to acknowledge you, recognize you, and honor your efforts on 29th of July. Any last words from you, Dr. Jain? So excellent work, DTOs. A few pointers. If you haven't got to present, we are sorry. We apologize. I know this time is limited, but we would love to have, and we would request that with the counselors, please make a 5-minute video of your PDSA, just like as if you were presenting, and we will take that video, we will spread it out, and then you take that and you make that viral. Also, we've talked about sustainability. Please plan on sustaining this level of work. And then looking forward to everyone coming next week for our final session. And then the work still continues. You will see the benefits of what you have done for the months to come. So don't think it ends. Continue that measurement of the outcome measure as well as the intervention measures, sustain that, and then you will see the outcome measures of increase in number of notifications. Thank you, Dr. Jain. I will just amplify what you said a bit for the counselors. Counselors, what you have to do is invite the DTO, okay, to the breakout room and do the recording of his presentation of the PDSA. Okay, we are doing the recording anyways. So automatically we will have the evidence and the PDSA by the DTO will be there. This PDSA will be shared, and we have promised that we have to make every DTO world famous in India. Okay, so with this, we take your leave, DTOs. It is 6 o'clock in the evening. That is all that we had asked for. And with this, thanks to CTD, thanks to Emory Global Health Institute, thanks to World Health Organization, thanks to Indian Institute of Public Health, Gandhinagar, the staff of CTI, and the IT staff which is supporting us all this while. Thank you. Thank you, everyone. Namaste. And all the counselors and the team leads. I was just watching their faces.